हेलो एवरीवन। आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जनरल इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के लिए चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो हमारी बुक है इंग्लिश की द मेनी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। उसका हम आज चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके जो हमारे बुक के जो द मेनी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर उसके जो हमारे संपादक है तस्वीर जैन, जो बुक है हमारी। पहला हमारा चैप्टर है आज का द स्टोरी ऑफ दिन अथॉरिटी 8 एडिटर है इसके रुतवाल टिपलिंग। इस्लाम टिपलिंग द कंप्लीट वर्क इनकी बुक है, उसमें ये तकलीफ है जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इनकी एक कहानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे से नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यह जो जो स्टोरी है हमारी बुरद्दीन की, ये मैं आपको मोबाइल के द्वारा पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी सही नहीं है इंग्लिश में। Who is the happy man? He that sees in his own house at home, little children CRGWNTD it dust, leaping and falling and crying. Muni Chandra, translated by Professor Peterson. The polo ball was an old scarred, chipped and thin, stood on the mantelpiece among the pipe stems which Imam Din, Kitnecker, was cleaning for me. Does the heaven born want this ball? Said Imam Din, deferentially, less than US's. The heaven born set no particular store by it, but of what use was a polo ball to a Kitnecker? By your honest favor, I have a little son. He has seen others ball, and desires it to play with. I do not I want it for myself. No one would for an instant accuse poily old Imam Din of wanting to play with polo balls. He carried out the baton into the veranda, and there followed a hurricane of joyful cats, a patter of small feet, and the thud 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 of the ball rolling along the ground. Evidently, the little son had been waiting outside the door to secure his treasure. But how had he managed to see that polo ball? Full. Next day, coming back from office half an hour earlier TK usual, I was aware of a small figure in the dining room, a tiny plump figure in a ridiculously inadequate shirt, which came perhaps halfway down the tubby stomach. It wandered round the room, thumb in mouth crooning to itself as it took stock of the pictures. Undoubtedly this was the little son. He had no business in my room, of course, but was so deeply absorbed in his discoveries that he never noticed me in the doorway. I stepped into the room and startled him nearly into a fit. He sat down on the ground with the ask. His eyes opened, and his mouth followed it. I can't see why it was undisco coming, and fled, followed by a long, dry howl in each cache the servants' quarters far more quickly Thari any command of mine had ever done. In 10 seconds, Imam Din was in the dining room. Then despairing sobs arose, and I returned to find Imam Din admonishing the small sinner, who was using most of his shirt as a handkerchief. This boy, said Imam Din, judicially, is a badmash, a big badmash. He will, without doubt, go to the jail khana for his behavior. Renewed yells roared from the penitent and an elaborate apology to myself from Imam Din. Tell the baby, I said, that the Sahib is not angry, and take him away. Imam Din conveyed my forgiveness to the offended, who had now gathered all his shirt round his neck, string-wise, and the yell subsided into a sob. The two set off for the do his name, said Imam Din, as though the name of Pihi Sine is Muhammad Din, and he Isa Badmash. Freed to no present danger, Muhammad Din turned round in his fat arms, and said gravely, J is rude that my name is Muhammad Din, to him, but one Ni. From that day dated my acquaintance with Muhammad Rag round of the garden. We greeted each other with much. Never again did he come into my dining room, but on the noise from his side, and Salam, Muhammad Dian from mine. Daily state, though our conversation. On my return from office, the little white shirt and the fat little body used to rise from the shade of the creaseper covered trellis where THCY had been hidden, and daily I checked my horse here, that my salutation might not be slurred over or given insanely. Muhammad Din never had any companions. He used to trotter about the compound, in and out of the castor oil bushes, on mysterious errands of his, QWP, on day item built upon some of his handiwork far down the UNDs. He had half buried the polo ball in dust, and stuck 6 shriveled old marigold flowers in a circle round it. Outside that circle again was a rude square, traced out in bits of red brick alternating with fragments of broken china, the whole bounded by a LTTLE bank of dust. The waterman from the bell curve put in a plea for the small architect, saying that it was only the play of a baby and did not much disfigure my garden.
Heaven knows that I had no intention of touching the child's work then or later, but that evening, a stroller of the garden brought me unawares full on it, so that I trampled, before I knew, marigold heads, dustpan, and fragments of broken soap dish into confusion past all hope of mending. Next morning, I came upon Muhammad Din crying softly to himself over the ruin I had wrought. Someone had cruelly told him that the Sahib was very angry with him for spoiling the garden, and had scattered his rubbish, using bad language the while. Muhammad then labored for an hour at effacing every trace of the dust, less than bag and pottery fragments, and it was with a tearful and apologetic face that he said, Talam, Tab, when I came home from office. A hasty inquiry resulted in Imam Din informing Muhammad Din that, by my singular favor, he was permitted to disport himself as he pleased, whereat the child took heart and fell to occupy the Marian of an estes which was to the creation. For some months, the chubby little eccentricity revolved in his humble orbit among the castor oil bushes and in the dust, always fashioning magnificent palaces from stale flowers thrown away by the bearer, smooth water worn, pebbles, bits of broken glass, and feathers pulled, I fancy, from my wholesale ways alone, and always groveling to himself. A gaily spotted sea was dropped one day close to the last of his little buildings, and I looked that Muhammad Din should of it. Nor was I disappointed. I meditated for the better part built something more than ordinarily splendid on the strength of an hour, and his crooning rose to a jubilant song. Then began tracing in the dust. It would I certainly be a wondrous pal ace, this one, for it was 2 yards long and a yard broad in ground plan. But the palak was never completed. Next up, there was no Muhammad Din at the head of the carrier's drive and no Talam to him. To welcome my return, I had grown accustomed to the greeting, and its omission troubled me. Next day, Imam Din told me that the child was suffering slightly from fever and needed quinine. He got the medicine and an English doctor. They have no stamina, these brats, said the doctor, as he left Imam Din's quarters. A week later, though I would have given much to have avoided it, I met on the road to the Mushulman burying ground Imam Din, accompanied by one other friend, carrying in his arms, wrapped in a white cloth, all that was left of little Muhammad Din. द स्टोरी ऑफ मुरादुद्दीन जो आपने अभी मोबाइल के द्वारा सुनी, उसका अब हम हिंदी अनुवाद बताने वाले हैं आपको। चूँकि मनुष्य कौन है? वह जो अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को धूल मिट्टी से लथपथ उछलते कूदते गिरते और रोते हुए देखता है। नित्यानंद प्रोफेसर पीटरसन द्वारा अनुदित तज्जान का हिंदी अर्थ अब हम देखेंगे। पोलो की गेंद बहुत पुरानी थी, उस पर खरोंचें थी, उसके सूत इसके टूट गए थे और उसमें कई गड्ढे पड़ गए थे। वह चिमनी के ऊपर बने सत्ते मेटल पीस पर पाइपों से बीच रखी थी, जिन्हें इमाम दिन, जो मेरा जिम्मेदार नौकर था, साफ कर रहा था। इमाम दिन ने आदरपूर्वक कहा, क्या हुजूर को ये गेंद चाहिए? मैंने उस गेंद को कोई विशेष महत्व नहीं दिया, लेकिन सोचा कि एक तार के लिए पोलो की गेंद का क्या उपयोग हो सकता है। इमाम दिन ने कहा, हुजूर की कृपा से मेरा एक छोटा बेटा है, उसने यह गेंद देखी है और वह इससे खेलना चाहता है। मैं इसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बुरे इमाम दिन पर यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह स्वयं पोलो की गेंद से खेलना चाहता है, इसलिए उसने वह पुरानी और टूटी फूटी बैट गेंद उठा ली। अब हम देखेंगे तो कठिन शब्द है उसके अर्थ। कोवेंट विथ गत, धूल के लथपथ, धूल मिट्टी के बड़े कूड़े। इसके अर्थ क्रोचो वाला, स्प्लिट, किनारों से टूटा हुआ, टेंटेड, गड्ढेदार, चुपका हुआ, प्लीट, चिमनी के ऊपर का सत्ता, नौकर सेवक, आदरपूर्वक, विनम्रता से। एविन बॉन, हुजूर साहब, ब्रिटिश अधिकारी के लिए सम्मानसूचक संबोधन। बेटल, पुराना और बुरी तरह घिसा पिटा टूटा फूटा। हम आगे कहानी देखेंगे। बरामदे में अचानक तुलसी का कोर मच गया। छोटे छोटे पैरों की दौड़ने की आवाज़ और जमीन पर गेंद के लुढ़कने की
दर दर की आवाज़ सुनाई दी। इतना था कि छोटा लड़का अपनी प्रिय पोलो की गेंद लेने के लिए दरवाजे से बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने उस गेंद को देखा थे। अगले दिन मैं रोज की अपेक्षा आधा घंटा पहले दफ्तर से लौटा। भोजन से सच में मैंने एक छोटे गोल मटोल बच्चे को देखा। उसने बहुत छोटी सी कमीज पहन रखी थी, जो उसके पेट से बीच तक की आती थी। वह कमरे में घूम रहा था, अंगूठा मुंह में डाले हुए धीरे धीरे गुनगुना रहा था और दीवार पर लगी तस्वीरों को ध्यान से देख रहा था। निस्संदेह वही छोटा बेटा था। वास्तव में उसे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह अपनी खोजबीन में इतना मग्न था कि उसने दरवाजे पर खड़े मुझे देखा ही नहीं। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वह बुरी तरह डर गया। वह ज़मीन पर बैठ गया, उसकी आंखें फैल गई और मुंह खुल गया। मुझे समझ आ गया कि अब वह ज़ोर-ज़ोर से रोएगा, इसलिए मैं तुरंत बाहर निकल गया। उसके लंबे रोने की आवाज़ नौकरों से क्वार्टर तक पहुंच गई। 10 सेकंड के भीतर इमामदीन कमरे में आ गया। फिर बच्चे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। जब मैं वापस लौटा तो देखा कि इमामदीन उसे डांट रहा था और वह अपनी तमीज़ देख कि इमामदीन उसे डांट रहा था और वह अपनी तमीज़ से आंसू पोंछ रहा था। इमामदीन बोला, यह लड़का बहुत शरारती बदमाश है। एक दिन अपने व्यवहार के कारण यह जेल जाएगा। इसके बाद बच्चे ने फिर ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और इमामदीन मेरी ओर से माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, बच्चे से कहो कि साहब नाराज़ नहीं हैं और उसे यहाँ से ले जाओ। इमामदीन ने बच्चे को बताया कि मैंने उसे माफ़ कर दिया था। बच्चा अब अपनी कमीज को गर्दन से चारों ओर लपटे हुए था और उसका रोना धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया। दोनों दरवाजे की ओर चल पड़े। जाते जाते इमामदीन बोला, इसका नाम मुअज़्ज़िन है और यह बड़ा बदमाश है। अब जब उसे कोई डर नहीं रहा तो मुअज़्ज़िन अपने पिता की बाहों में मुड़कर गंभीरता से बोला, साहब, यह सच है कि मेरा नाम मुअज़्ज़िन है, लेकिन मैं बदमाश नहीं हूँ। मैं एक आदमी मर्द हूँ। उसी दिन से मेरी मुअज़्ज़िन से पहचान हो गई। वह फिर कभी मेरे भोजन कक्ष में नहीं आया, लेकिन बगीचे में जब भी हम मिलते तो एक दूसरे को अभिवादन करते। उसी ओर से सलाम साहब और मेरी ओर से सलाम मुअज़्ज़िन कहा जाता था। ये हंस एक छोटे मासूम और चंचल बच्चे मुअज़्ज़िन की निष्ठता और उसके भोले स्वभाव को दर्शाता है। कार्यालय से लौटते समय मैं अक्सर मुअज़्ज़िन को देखता था। वह कभी भी अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलता था। वह अकेले ही पूरे परिसर में रंडी के पौधों के बीच अपने ही कामों में इधर-उधर घूमता रहता था। एक दिन मैंने देखा कि उसने ज़मीन पर अपनी छोटी-सी कलाकारी बनाई थी। उसने एक पोलो की गेंद को आधा मिट्टी से गाड़ दिया था और उसके चारों ओर 6 सूखे गेंदा के फूल लगा दिए थे। उसके बाद लाल ईंटों के टुकड़ों और छोटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से एक चौकोर आकृति बनाई थी। इस सबके चारों ओर मिट्टी की छोटी-सी मेड़ भी बनाई थी। कुएं से पानी भरने वाले नौकर ने मुझसे कहा कि यह तो केवल एक छोटे बच्चे का खेल है और मुझसे कहा कि यह तो केवल एक छोटे बच्चे का खेल है और इससे मेरे बगीचे की सुंदरता पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता। मैंने कभी भी उस बच्चे की बनाई हुई चीज़ को नष्ट करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उसी शाम जब मैं
बगीचे में टहल रहा था तो अनजाने में उस छोटी सी रचना पर पेड़ पड़ गया। गेंदा से फूल, मिट्टी की मेड़ और टूटे बर्तनों के टुकड़े सब बिखर गए और उसे फिर से ठीक करना असंभव हो गया। अगली सुबह मैंने मोहब्बत को अपनी टूटी हुई रचना के पास धीरे धीरे रोते हुए देखा। चिची ने उससे झूठ बोल दिया था कि साहब मैं उसके बगीचे को खराब करने से बहुत नाराज है और गुस्से में उसकी बनाई चीज़ को बिखेर दिया। इसलिए मोहब्बत लगभग 1 घंटे तक अपने बनाए हुए निशानों को मिटाता रहा। जब मैं दफ्तर से लौटा तो उसने आंसू भरी आंखों और शर्मिंदा चेहरे के साथ मुझे सलाम किया। मैंने उसके पिता इमामदीन से बात की। उन्होंने मोहब्बत को बता दिया कि मेरी अनुमति से वह जैसे चाहे वैसे खेल सकता है। यह सुनकर बच्चे का हौसला बढ़ गया और उसने पहले से भी अधिक सुंदर और बड़ा निर्माण बनाना शुरू कर दिया। कई महीनों तक वह गोल-मटोल भोला-सा बच्चा अकेले ही अरंडी के पौधों के बीच मिट्टी में खेलता रहा। वह सूखे फूलों, पानी से सिसकने हुए कंकरों, टूटे हुए कांच के टुकड़ों और पक्षियों के पंखों से छोटे-छोटे शानदार महल बनाता रहता था। वह हमेशा अकेला रहता और काम करते समय धीरे-धीरे गुनगुनाता रहता था। एक दिन उसके बनाए हुए छोटे से भवन के पास एक सुंदर चींटीदार चींटी खेल आकर गिर गई और मैंने देखा कि मोहब्बत आगे का भाग हम अगले वर्ग में देखेंगे। मैं चाहता था कि वह अपनी कल्पना और मेहनत से पहले से भी अधिक शानदार चीज़ बनाए और मैं निराश नहीं हुआ। उसने लगभग आधे घंटे तक सोच विचार किया और खुशी से झिंगाता रहा। फिर उसने धूल में एक महल का नक्शा बनाना शुरू किया। यह महल निश्चित ही बहुत अद्भुत होता, क्योंकि उसकी योजना के अनुसार वह 2 गज लंबा और 1 गज चौड़ा था। लेकिन वह महल कभी पूरा नहीं बन सका। अगले दिन गाड़ी के रास्ते से पास मुझे मोहब्बत दिखाई नहीं दिया और न ही उसकी आवाज़ सलाम साहिब सुनाई दी। मैं उसकी इस आदत का आदी हो गया था, इसलिए उसका न मिलना मुझे परेशान कर गया। अगले दिन इमामदीन ने बताया कि बच्चा हल्के बुखार से पीड़ित है और उसे कुनेर दवा की आवश्यकता है। उन्होंने दवा भी मंगवाई और एक अंग्रेज़ डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने इमामदीन के घर निकलते हुए कहा, इन बच्चों में सहन शक्ति नहीं होती। एक सप्ताह बाद, हालांकि मैं ऐसा दृश्य कभी नहीं देखना चाहता था, फिर भी मुस्लिम कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते में मेरा मुलाकात इमामदीन से हुई। उनके साथ एक और व्यक्ति था। इमामदीन अपनी बाहों में सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ अपने छोटे बेटे मोहब्बत का निर्जीव शरीर लिए हुए थे। यही उस छोटे बच्चे की अंतिम विदाई थी। जब अभी 13 शब्दार्थ हम देखेंगे। मेडिटेशन, तो गहराई से सोचा, ध्यान किया। ग्राउंड एंड आधार योजना नक्शा, अबस्त आदि, फेवर, बुखार, स्वाइन, नेर, मलेरिया आदि की दवा, टीम, सहन शक्ति, ब्रेन, ग्राउंड, कब्रिस्तान, वेपर्ड इन वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ। ये हमने अपनी जो द मुरब्बतीन की जो हमारी स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ मुरब्बतीन, उसका हिंदी अनुवाद देखा। अब हम देखेंगे समरी, द स्टोरी ऑफ मुरब्बतीन, जिससे हमारे लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग। इससे हम समरी देखेंगे हिंदी में। इसकी जो समरी है इंग्लिश में भी होती है, आप 1 वीक खरीदेंगे इंग्लिश की,
उसमें भी आपको इसकी इंग्लिश में मिल जाएगी और हिंदी में, दोनों में मिलेगी। बहुत सारे लोग हमारे BHE में इंग्लिश मीडियम के होते हैं जो इसको इसी हमारी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। मैं तो अभी यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। हिंदी का परिचय। कहानी का परिचय। रुद्रा टिपलिंग की द स्टोरी ऑफ मोहम्मदीन में हमारे पास नश्वरता, उदारता, अधिकार, अनुरूपता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का विषय है। उनके प्लेन टेल्स फ्रॉम द इल्ड संग्रह से ली गई है। कहानी एक अनाम व्यक्ति द्वारा पहले व्यक्ति में सुनाई गई है और कहानी पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि टिपलिंग मृत्यु दर से विजय की खोज कर रहे होंगे। कहानी के अंत में मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु का कारण बुखार माना जाता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि जो अंग्रेजी डॉक्टर मोहम्मद की देखभाल कर रहा है उसे वास्तव में मोहम्मद की भलाई के लिए कोई बड़ी चिंता नहीं है। संभव है कि प्रतीकात्मक रूप से टिपलिंग यह बुखार सुझाव दे रहे हो कि जैसे डॉक्टर को मोहम्मद की परवाह नहीं है। जिन लोगों ने भारत को उपनिवेश बनाया वे उन लोगों की परवाह नहीं करते जो पहले वहाँ थे। जेम भारती। मोहम्मद भी एक साधारण लड़का था जिसने तथावाचक के बगीचे में अपनी छोटी सी दुनिया बनाने की कोशिश की। यह भी प्रतीकात्मक हो सकता है क्योंकि टिपलिंग स्वतंत्रता के लिए उस संघर्ष का सुझाव या प्रकाश डाल सकते हैं जिससे कहीं भारतीय गुजरे थे। इनमें भी कोई संदेह नहीं है कि वर्णनकर्ता मोहम्मद का एक उदार मेजबान है। उसे अपने बगीचे और अपने घर के अन्य कमरों को चलाने की अनुमति देना यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि वर्णनकर्ता अन्य उपनिवेशवादियों जैसे अंग्रेजी डॉक्टर के विपरीत हो सकता है जिनके पास भारत के मूल निवासियों के खिलाफ बुरी टिप्पणियों के अलावा शुद्ध नहीं है। यदि शुद्ध भी हो तो उपनिवेशकर्ता स्वयं को अधिकारी के रूप में देखता है और उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कानून का शासन उन पर निर्भर है और जब भारतीयों के साथ संघर्ष की बात आती तो उन्हें अनुकूल व्यवहार मिलता। एक उपनिवेशवादी की बात भारतीयों से अधिक महत्व रखती थी जिसे कुछ आलोचक अनुचित मान सकते हैं। वर्णनकर्ता स्वयं मोहम्मद के साथ अच्छा व्यवहार करता है, हालांकि उसके पिता उसे कई अवसरों पर डांटते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि मोहम्मद को डांटकर इमाम अपने बेटे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे अपनी इच्छा के अनुरूप बनाना। हालांकि कुछ पाठक सुझाव दे सकते हैं कि इमाम को अपने बेटे के स्वभाव के कारण अपनी नौकरी खोने का डर है। हालांकि वर्णनकर्ता वास्तव में कभी भी मोहम्मद से नाराज नहीं दिखता। उसे वह सारी आज़ादी देना जो वह चाहता है। दुर्भाग्य से मोहम्मद को इस स्वतंत्रता का पुरस्कार कभी नहीं मिल पाया। हो सकता है कि टिपलिंग यह बात करने का प्रयास कर रहे हों। हो सकता है कि वह ये सुझाव दे रहे हों कि मोहम्मद प्रतीकात्मक रूप से उन लोगों की दुर्दशा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वतंत्रता चाहते हैं या जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। जैसे मोहम्मद की मृत्यु हो गई वैसे ही भारतीय लोगों के लिए स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अंततः कुछ वर्षों बाद समय आता है यदि कुछ भी हो तो टिपलिंग ये सुझाव दे सकते हैं कि जैसे ही मोहम्मद जीवन की तसलवाता में है यह एक बच्चे है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी ऐसा ही है। यह मोहम्मद की तरह लग रहा जाएगा। हालांकि समय के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य में सफल हो। एक धारणा यह भी है कि जब वर्णनकर्ता इमाम को मोहम्मद को ले जाते हुए देखता है तो उसे उस पर दया आती है। वह युवा टर्कीय बच्चा चला गया
जिसे खेलना पसंद था, और जो सुस्त बच्चा है वो कपड़े में ढका हुआ मोहब्बत का लंगड़ा शरीर है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वनलता के पास शब्द नहीं है कि वह इमाम से प्रति अपनी संवेदना कैसे व्यक्त करे। मोहब्बत एक तंत्र बच्चे के तुच्छ ही दिनों में मरने के कगार पर पहुंच गए। पाठक को संदेह हुआ कि क्या मोहब्बत को अंग्रेज होना चाहिए था। उसे बेहतर देखभाल मिलती है। यह देखते हुए कि ऐसा प्रतीक होता है कि डॉक्टर अनिष्ठापूर्वक मोहब्बत की देखभाल कर रहा है, और मोहब्बत या उसके पिता की ओर से किसी भी प्रकार के आभार के बारे में संशय में है। वास्तव में मोहब्बत की मृत्यु न केवल एक ताकदी है, बल्कि यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि अंग्रेजी उपनिवेशवादी दोनों भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तथावाचक को छोड़कर मोहब्बत को निराश किया गया है, सबसे पहले उसके पिता द्वारा, जो उसे डांटते हैं और उसे समर्पण करने के लिए मजबूर करते हैं। उस नियंत्रण को प्रतिबिंबित करना जो इंग्लैंड ने भारत पर लगाया था, और दूसरा डॉक्टर द्वारा ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत के लिए जीवन अनिवार्य रूप से छोटा होने वाला है था, क्योंकि उन्हें कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र होने का अवसर नहीं मिलता, बालक की तरह, जैसा कि वह चाहते थे। उनके पिता की भूमिका तथावाचक के प्रति विनम्र थी, और इस तरह उन्हें उम्मीद थी कि मोहब्बत न केवल तथावाचक के प्रति बल्कि उनके प्रति भी विनम्र होंगे। सत्य यह है कि अंत इतना अंधकारमय है, यह भी दिलचस्प है, क्योंकि यह फिर से दर्शाता है कि भारत में कुछ लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बारे में ऐसा महसूस किया होगा। हालांकि जैसा कि इतिहास से पता चलता है, आखिरकार वह समय आएगा जब भारत को इंग्लैंड की आज़ादी मिलेगी। दुर्भाग्य से मोहब्बत ने वह दिन कभी नहीं देखा। हालांकि वह वनलता के बगीचे में अपनी 2 गज की दूरी से ही संतुष्ट था। मोहब्बत के लिए स्वतंत्र और खुश रहने के लिए यही सब कुछ आवश्यक था। ये हमने देखा अपनी जो कहानी थी द स्टोरी ऑफ मुराद उसका सारांश। मैं जो हमारी जो चैप्टर है बुक के साथ उनको तब्लीग कराऊंगा, और उनके बाद जामर का पोर्शन चालू करूँगा। मैं जो पेपर आएगा इसका जो इंग्लिश का जो हमारा जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है हमारा 50 अंक का मल्टीप्लाई क्वेश्चन का मतलब होता है अपना ऑब्जेक्ट टाइप होता है, मतलब बहुपद विकल्पी द्वारा 50 नंबर के जो हमारा पेपर होता है 50 क्वेश्चन होते हैं। इनके जो हमारे क्वेश्चन है 4 चैप्टरों के, इसके में जो चैप्टर है क्वेश्चन है उनको मैं आपको एग्ज़ाम से पहले वीडियो बना के कराऊँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी जो इंग्लिश की मैम है कमान नंबर 1 में जो बैठती थी हमारी श्रीमती ईना कुमारी मैम, वो जिन्होंने अब कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में पढ़ाना छोड़ दिया है। उनका जो पद है अभी रिक्त है इंग्लिश का हमारे कॉलेज में। लेकिन हमारी हिंदी की जो मैम है हमारी ईना मीना मैम है, उन्होंने कहा है कि वो हमें इंग्लिश पढ़ाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका इस स्टोरी में कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं आगे की वीडियो लेकर आपके साथ लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।